Good morning, dear students. How are you? And you also know our second day class of today. It means from the channel of a student guideline, read and learn. That's our slogan. And we have discussed about chapter first, number system, part one before 1 days, and we have also discussed number system. It means there are two types of number system: Hindu Arabic, Roman numbers, and Hindu Arabic types. I think more than topics are uh, left going on. And today we have discussed about international system and Indian system. Okay, so and one another things. Yesterday, which video I have uploaded our channels, and so many students call me and then says, "Sir, you teach well, but please, you also describe in English to Hindi. If you describe in English to Hindi, then I am more than support." So that's very good, because both of it, my side and you also, if you see and learn my video with the help of student guideline channels, so कोई बात नहीं है, आपको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको आज से बताएंगे, जिसके लिए आपको आपके घर पे रह के भी आपको स्टडी का जो इंटरेस्टिंग होता है वो आप अच्छा से ले सके। और प्लस पॉइंट्स ये रहेगा कि जिसमें हम आपको कल पढ़े थे नंबर सिस्टम। इट मीन्स हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम इन माय साइड या इन मैथ साइड देयर आर टू पार्ट्स नंबर सिस्टम। इट मीन्स first side Hindu Arabic and second side Roman numbers. Okay, and in Hindu Arabic sides we have also discussed about plus value and another types, and today we have discussed about Indian system and international system. Okay, so let's come on the points: Indian system and international system. Okay, so carry on. Okay, so come to the points. Our first topic is Indian system. Okay, I think when I am also read in lower class, just like a fourth class, fifth class, my teacher also teach one types here, just like ones here one, tens here two, 100 it means 3, just like I also wrote on the board and you appreciate. यानी आप जब छोटे थे आपको टीचर पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे कि वंस, टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड ऐसे करके आपको सभी टीचर्स पढ़ाते थे। उसमें हम भी पढ़े हुए हैं, वैसे ही पढ़े थे जैसे कि, और उसमें बताया जाता था कि ये नंबर्स ऑफ डिजिट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट इन वंस, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट इन थाउजेंड, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट इन lakhs, how many numbers of digit in crore, how many numbers of digit in thousands. It means just like here ones, if you read ones plus, it means how many digit? 1. If you read tens, it means how many digit? 2. You read in hundreds, it means 3 digit. यदि आप 1000 प्लस को पढ़ते हैं तो उसमें कितने डिजिट मिलेंगे? आपको 4 डिजिट मिलेंगे। और अगर 10,000 पढ़ते हैं तो आपको 5 डिजिट मिलेंगे। लैक्स पढ़ते हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 6 डिजिट मिलेंगे। और 10 लाख पढ़ते हैं तो 7 डिजिट मिलेंगे। और करोड़ जब पढ़ते हैं तो उसमें 8, और 10 करोड़ में क्या मिलते हैं आपको? 9 डिजिट मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आपको कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे हमने लिखा कि 3 ones, ones, tens, 100, and in that's a participating ones part, यानी आपको 1, टेंस और 100 को हमने एक पार्ट में रखा। क्यों? क्योंकि ये सभी डिजिट जो है वो वंस के अंदर आते हैं। और हमने 10,000 और 1000 को हमने एक पार्टिसिपेट में रखा, यानी ये सभी दोनों डिजिट जो है 1000 और 10,000 वे थाउजेंड्स के अंदर आते हैं। और लैक्स को और 10 लैक्स को हमने लैक्स के अंदर रखा है, यानी कि दोनों डिजिट इसके अंडर में आते हैं। लास्ट वन इज करोड़, इट मींस 10 करोड़ एंड 9 डिजिट 10 करोड़, 8 डिजिट करोड़। इन
अंडर द करोड़ से, यानी 9th नंबर डिजिट और 8 नंबर डिजिट को हमने करोड़ के अंदर रखा है, यानी उसी के अंडर में ये डिनोट करते हैं। ये रखने से आपको एक चीज प्रॉफिट मिला, यानी कि जो इसके जस्ट अगला स्टेप इसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको यूजेज ऑफ कॉमा पढ़ते हैं, ठीक है ना। यूजेज ऑफ कॉमा जब पढ़ेंगे उसमें आपको ये पार्टिसिपेशन का मतलब अच्छी तरह से समझ में आएगा, जो कि फिर आगे थोड़ी देर बाद वो बताएंगे। फिलहाल हम आते हैं एग्जाम्पल पे। जस्ट लाइक I also wrote on the board one example, 1 2 3 4 5 6 7 8 number. It means total number of digit 8 7 5 6 2 4 9 0, and that's an example of Indian system. And your question says convert in, yeah, write the numbers name of that question, how to write in Indian system. Is that clear? So firstly, that's of your first step. It means first step, count the digit. It means फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये डिजिट, यानी जो भी डिजिट आपको मिलेंगे वो डिजिट को काउंट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम काउंट करते हैं। ओके, कम ऑन द बोर्ड, 1 10 100 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 and 8 नंबर। इट मींस हाउ मेनी टोटल डिजिट, 8 डिजिट है। यानी अब इसमें आते हैं, जो कॉलम्स बना हुआ हमारा उस कॉलम्स में आते हैं। इसमें 8 नंबर में कौन सा डिजिट मिला आपको, करोड़ का। तो हमें ये पता चला हमारी जो टोटल डिजिट है वो किस चीज में है, करोड़ में आती है, ठीक है। जब टोटल डिजिट करोड़ में आता है तो अब स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। तो 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs एंड करोड़। इज दैट क्लियर? इट मींस 8 डिजिट पे हमारा कौन सा डिजिट आ रहा है, करोड़ आ रहा है, ठीक है। और सेकंड स्टेप अब इसमें क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि रीड द नंबर्स। इट मींस रीड द इंडियन सिस्टम, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, रीड इट, यानी इसे आप पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे वो हम आपको बता रहे हैं। 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs एंड करोड़। अब देखिए लास्ट डिजिट आपको आया 7, और 7 जो है टोटल किसके बराबर आ रहा है, करोड़ के बराबर आ रहा है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे लास्ट 8 डिजिट टोटल आ रहे हैं, और 8 डिजिट पे हम देखते हैं तो करोड़ मिलता है, ठीक है ना। और करोड़ जब मिलता है यानी हमारा कितना करोड़ लिखा होगा, यहाँ पे डिजिट नंबर क्या है, 7 है। इट मींस बिना इधर से अब काउंट किए, बिना लिखे हुए हम क्या करेंगे, 7 करोड़ लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, 7 करोड़ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 8 नंबर डिजिट लेंगे और 8 नंबर डिजिट में आपको कितना है, 7 है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब देखिए यहां से हमारा टोटल डिजिट कितना था, 7 था। अब 7 में से जब हम 1 माइनस करते हैं, हाउ मेनी डिजिट लेफ्ट, you have only 6 digit left. Okay, so 6 digit left. Then you also read 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 10 lakhs. It means 10 lakhs 10 lakhs. अब 10 lakhs 1 2 3 4 5 6 7 digit you have left. Okay, you have 7 digit left. So 7 number digit 10 lakhs. 10 lakhs, you also know 10 lakhs come in lakhs, under the lakhs, यानी जो 10 lakhs जो आ रहा है वो आपको lakhs के अंदर आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जब 2 कॉलम लिया गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आने वाले डिजिट को हम कभी भी 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट में अब आपको क्या मिला, 56, यानी ये क्या हो गया, 56। इट मींस 7 करोड़ 56 क्या, lakhs, 56 lakhs. It means you also write on the board 7. Okay, 7 crore 56 lakhs here. क्लियर? ओके, यानी कि आपको सबसे लास्ट वाला डिजिट 8 नंबर था, 8 करोड़ में आ गया, और फिर उसके बाद 7 डिजिट बचा, तो 7 डिजिट आता है 10 lakhs में। जब भी 10 का मतलब 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट में आपको 56 आ गया। क्लियर है? और फिर नेक्स्ट, अब देखिए 7 डिजिट आपके पास बचा था, 7 डिजिट से 2 डिजिट माइनस हो गया। अब बताइए आपके पास कितने डिजिट बचे, 5 डिजिट। अब तुरंत आते हैं आपको 5 डिजिट पे, ठीक है। 5 डिजिट में आपको क्या मिलता है, 10,000, यानी 10 का मतलब फिर आपको क्या मिला, 2 डिजिट मिला, ठीक है। अब 2 डिजिट का मतलब हो गया यहाँ पे कितने हैं, 24, ठीक है। अब 24 का मतलब क्या है, 2 डिजिट में 24 किस में आया था, 1000 में। तो आपका आंसर क्या हुआ बच्चों, 24,000। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट वन, इफ यू हैव 5 नंबर, यू ऑल्सो माइनस 2 डिजिट। 2 डिजिट, हाउ मेनी नंबर्स लेफ्ट, 3 डिजिट।
only. Okay, so 3-digit number says what? 100. It means 908. 908. Is that clear? 908. Okay. So, okay. So your answer is finished. It means 908. Last one is 900. That's your answer. Okay. So repeat once time. Ones plus 1, tens plus 2, 100 plus 3, 1000 plus 4, 10,000 5, lakhs plus 6, and 10 lakhs plus 7, and crore in 8 and 10 crore in 9. तो सबसे पहले हम याद क्या करना है आपको, तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे जो आपको लिखा गया है, नंबर ऑफ डिजिट सबसे पहले लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जब नंबर ऑफ डिजिट लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट याद रखेंगे, तो आपको इंडियन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब जब हम इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं तो जस्ट इसी में आपको एक और इसका पार्ट होता है कि राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंडियन सिस्टम। जैसे आपका क्वेश्चन सेम है और इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। लेकिन ध्यान रहे कि सबसे पहले आप लोग पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए और इस फॉर्मेट को सबसे पहले नोट कीजिए, ठीक है। यहां से लेके यहां तक फॉर्मेट नोट करेंगे और इसे याद करेंगे। इट मींस इफ यू रिमेंबर एंड दैट्स अ नंबर, digit of number, then you also solve the Indian system and you also follow that step. It means first step count the digit and second step read it, and then you also start with the help of number system. It means ones part, thousand part, lakhs parts and crore parts, and that's a number of digit. It means period. Okay, so you follow this rule and after that solve your question. Okay, so सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, पहले आप नोट कीजिए और या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कीजिए और इसे आप लिखिए। मेक इट फास्ट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो वी हैव डिस्कस अबाउट, इट मींस राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि जब भी हम इंडियन सिस्टम में जब इसको लिखते हैं, यानी राइट द नंबर्स नेम ऑफ दैट क्वेश्चन इन इंडियन सिस्टम। सो फर्स्टली वी हैव काउंट द नंबर, ओके, एंड नेक्स्ट you read the number with the help of Indian system. It means ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, etc. Okay, and that's another part of the number. Write in expanded form. यानी इसका दूसरा पार्ट एक और आता है जो पढ़ते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म में। लिखिए, क्वेश्चन देगा कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हाउ टू राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज काउंट द नंबर, हाउ मेनी नंबर्स, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many digits? It means there are 8 digits of total number. It means 8 digit means crore. It means 7 crore. So how many digits? 8 digits. So write multiple of 7. यानी 7 multiple of crore. It means ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs and crore. यानी कि सबसे पहला 7 जो है वो मल्टीपल किसका है, करोड़ का। तो 1 करोड़ लिखेंगे और 1 करोड़ को 7 से मल्टीपल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 करोड़। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर, इफ यू हैव टोटल number of digit 8, total number of digit 8 and one number minus how many number left, 7. So 7 number digit it 10 lakhs. In 10 lakhs how many digit, 7 digit. Okay, so write here 5, that's a 5, and how many digits, 7 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. It means when you multiply your 5 into 1, it means lakhs, 10 lakhs. So how many number get, 50 lakhs. Okay, 50 lakhs, right? And next one is 6 digit. If you have the 7 number and minus 1, how many number left, 6 number. So 6 number is lakhs. So 6 multiple of lakhs. 6 multiple of lakhs, जब 6 को 1 lakhs के मल्टीपल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 lakhs मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास 6 डिजिट था, उसमें से आपने 1 माइनस किया, अब आपके पास कितने डिजिट बचे, 5 डिजिट। देखिए इसमें 5 नंबर पे कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर पे आपको मिला 2 मिला, 5 नंबर पे 2 मिला, ठीक। और 5 पे जो 2 मिला वो किस पे है, 10,000, यानी 20,000। 2 10 का मतलब
20, 2 10 20, यानी कि 20,000 मिला। तो 20,000 में आपको कितना डिजिट है, कितना डिजिट है, 5 डिजिट। तो 1 2 3 4 5, इट मींस 2 इज द मल्टीपल ऑफ 10,000, यानी कि अब 2 को 10,000 से मल्टीपल करते हैं तो आपको कितने मिलते हैं, 20,000। ठीक है, 20,000, यानी आपके पास 5 डिजिट थे, 5 में से 1 आपका चला गया, अब आपके पास कितने डिजिट बचे, 4 डिजिट। सो व्हाट इज द डिजिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट, 4, 4 इज द 1000। तो 4 मिला आपको किस पे, 1000 पे। सबसे पहले आपको डिजिट क्या था, 4 था। ठीक है, अब 4 पे 4 डिजिट मिला यानी 1000, तो ये किसका मल्टीपल है, 4000 का। 4 इज द मल्टीपल ऑफ 1000, इट मींस 4 1 जा 4, तो ये कितना हो गया आपको, 4000। ओके, ये मिला आपको 4000। फिर आपको जब 4 से 1 माइनस किए तो कितना बचा, 3 डिजिट। अब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट पे आपको क्या मिला, 9। तो 9 है, मल्टीपल किसका है, 9 इज द मल्टीपल ऑफ 100, so that's your answer is 900. Okay, that's right. And second, it means you have 3 numbers, 1 minus how many number left, 2 numbers left. So 2 number, second digit is 0, 0. It means 0, if 0 is the multiple of 10, you also know, यदि आप ये पहले से जानते हैं कि जब भी 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीपल किया जाता है तो उसका आंसर कितना होता है, 0 ही होता है। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट वन, 1 में से 1 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 1 बचा। दैट्स द लास्ट डिजिट ऑफ 1, इट मींस 1 प्लेस 1, दैट्स 8 मल्टीपल ऑफ 1 इज इक्वल टू 8। तो ये आपका है एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर अब हम इसका आंसर देखें तो सबसे पहले हमारा काउंट किए तो ये मिला आपको 7 करोड़, तो 7 करोड़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये है आपको कितना, तो 50 लैक्स है, यानी 10 लैक्स है तो 50 है, तो ये 50 लैक्स हो गया। फिर ये मिला आपको लैक्स पे आया तो 6 लैक्स हो गया। नेक्स्ट वन है आपको 2, यानी टेंस पे है तो ये 20,000 हो गया। फिर उसके बाद 4 पे है तो ये 4000 हो गया। फिर थर्ड डिजिट है, यानी थर्ड डिजिट का मतलब 100 होता है, तो 9 1 से 9 है, 900 हुआ। एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट वन 0 है और 10 डिजिट पे है तो 0 हो गया। फिर लास्ट में जो है 1s प्लेस पे तो 8 है तो 8 हो गया। तो ये आपका हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट क्वेश्चन इन इंडियन सिस्टम both 2 questions are come in your exam. In your book also write the numbers name with the help of Indian system, and another question is write in expanded form. Is that clear? तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे पहले लिखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे बनाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है और बाकी आपको हम बता चुके हैं, तो ये है। ठीक है, जल्द से लिखिए। ओके, सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। फिर आपको इसके बाद इसमें यूजेस ऑफ कॉमा और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में जो कल पढ़ेंगे। और एक और आपके लिए गुड न्यूज है मेरे बच्चों कि आज ही 11 बजे के बाद आपको 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका वीडियो आज अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल से। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और बच्चों, अगर यदि किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस नंबर पे आप कभी भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे आपको अपना क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, गुड बाय स्टूडेंट्स।